بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج کے جمعۃ المبارک کے اجتماع میں انشاءاللہ العزیز سورہ توبہ کی چند آیات آپ کے سامنے ان کا کچھ مفہوم رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، آپ کو بخوبی علم ہے کہ ہم ہمیشہ جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض گزار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ آپ کو آہستہ آہستہ قرآن مجید کی آیات کا علم ہو اور آپ حضرات کو یقین کامل ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اہل ایمان کے لیے جو احکامات نازل فرمائے ہیں وہ ہماری عملی زندگی کا حصہ ہیں، اور ہم نے اللہ رب العزت کے ان احکامات کو معلوم کرنا ہے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے تاکہ ہماری یہ زندگی بھی کامل ہو جائے، یہ زندگی بھی باعزت ہو جائے، اس زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان کہلانے کا ہم حقدار بن جائیں، اور آخرت کی زندگی بھی ہماری کامیابی والی زندگی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ اسی دنیا کی بنیاد پر ہے، اس دنیاوی زندگی کی بنیاد پر ہماری آخرت میں بننا بھی ہے اور بگڑنا بھی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم۔ اللہ کریم ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہود و نصارہ کی جو علماء ہیں اور ان کے جو رہبان ہیں، جو ان کے قسیسین ہیں اور جو ان کے رہبان ہیں اور جو ان کے علماء ہیں اور جو ان کے مشائخ ہیں، جو ان کے پیر ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان کی ان خرابیوں سے آگاہ کیا۔ یاد رکھیں دوستوں اور بزرگوں، اسلام کے اندر علماء کا اور مشائخ کا بڑا اہم کردار رہا ہے، اور ان علماء اور مشائخ کی وجہ سے اسلام کی تعلیمات کا ایک تسلسل قائم رہا ہے، اور آج تک
उन्हीं की वजह से ही दीन इस्लाम की अक़दार, दीन इस्लाम के अहकामात, दीन इस्लाम की तालीमात और इन पर अमल करना जिंदा हकीकत है। लिहाजा यहूद व नसारा के उलमा और मशाइख के बारे में जो हुक्म दिया गया है उसको हमने अपने इस माशरे के तनाज़ुर में देखना है कि क्या हमारे यहाँ इस्लाम में तो वो चीज़ें दर नहीं आई हैं, वो चीज़ें पैदा तो नहीं होगी। याद रखें, हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुर्बे क़यामत की निशानियों में, ये इरशाद फरमाया कि तुम यहूद व नसारा की इस तरह पैरवी करोगे कि अगर वो किसी सुराख के अंदर घुसे हो, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम यहूद व नसारा की इस तरह पैरवी करोगे कि अगर वो किसी सुराख के अंदर घुसे होंगे तो तुम भी उस सुराख में दाखिल हो जाओ, यानी इस तरह कदम ब कदम तुम उनकी पैरवी करो। लिहाजा ये जो बात है, ये जो आयत मुबारक है, इसको इसके हकीकत के तनाज़ुर में देखा जाना चाहिए, न कि ये हो कि हम हर आलिम और हर शेख कामिल पर इसको मुंतबिक करते चले जाएं और सबकी नफी करते। अल्लाह करीम ने उन यहूद व नसारा के उलमा के बारे में हमें जो ये बात बताई है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके बारे में तारीफ भी की, जो उनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे उलमा और मुशाइख भी हैं जो अदर से करने वाले भी हैं। लिहाजा हमें तवाज़ुन कायम करना है। हमारे यहाँ अक्सर क्यों झगड़े होते हैं? इस वजह से झगड़े होते हैं कि हमारे यहाँ ये जो तकनीक है, ये जो फिरका बंदी है, ये इस वजह से है कि हम कुरान मजीद की आयात और हदीस मुबारक से जो इल्म हासिल हुआ है उसको मुंतबिक करते हैं अल्लाह ताला के बंदों पर। हमारी सबसे बड़ी खराबी है कि वो बातें, वो आयात, वो अहकामात जो अल्लाह ताला ने नाजायज खाने वालों, हराम खाने वालों और बुतों के बारे में नाजिल की, तो हम अल्लाह ताला के वलियों पर मुंतबिक कर देते हैं और यहाँ से ये सारी खराबी पैदा होती है, यहाँ से फिरकाबंदियां पैदा होती हैं। फिर एक दूसरे पर खत्मों के बाजार गर्म होते हैं, फिर ये कहा जाता है ये काफिर, वो काफिर, वो काफिर, ये मुसलमान, ये आदम, ये फलां, ये सारी चीजें खराबियों की वजह से पैदा होती है। ऐसी बात है कि नहीं? आप मेरी बात को फॉलो कर रहे, समझ रहे हैं मेरी बात? ये खराबियां इस वजह से पैदा होती हैं कि हम कुरान मजीद के अहकामात की, हदीस मुबारका के अहकामात की अपनी जात से तावील करके, अपने अंदर के मनमानियों को तावील करके हम उन अल्लाह के बंदों पर उनको मुंतबिक कर देते हैं जो जिनके अंदर ये खराबियां होती हैं। हमारे अंदर ये एक बात मौजूद है कि हमारे अंदर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हक बात करते हैं, इसकी वजह से भी खराबी पैदा होती है। और उसकी क्या वजह है? हम अपने अपने मकासद फिक्र और अपने अपने मिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गलत बात को गलत भी नहीं कह सकते। ये सब लोगों के अंदर ये बात मौजूद है। बात सच्ची तो यही है। हर आदमी, हर मसलक का आदमी, मैं ये नहीं कहता ये अहले सुन्नत, ये अहले हदीस, ये अपना, ये नहीं, हर मसलक का आदमी अपने मसलक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गलत तावीलात करता चला जाता है और जो भी चीज सामने आती है उसको वो कहता है कि नहीं, ये मेरे मसलक के मुताबिक नहीं, इसलिए मैं इसको कबूल नहीं करती, हाँ वो कुरान और हदीस के खिलाफ भी क्यों ना।
यहीं से ये सारी खराबी पैदा होती है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबार व रुहबान, ऐ ईमान वालो, अहबार और रुहबान यानी यहूदियों के और ईसाइयों के पादरी और उनके राहिब, ईसाइयों के पादरी उलमा और उनके राहिब, उनमें से एक कसीर तादाद ऐसे लोगों की है कि लयाकुलून अम्वालन नास, कि वो लोगों का माल खाते हैं, बिल बातिल, बातिल तरीका से, नाजायज तरीका से, व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से जाने के से उनको रास्ते रोकते हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, वो क्या तरीका था? आप जरा इस बात का अंदाजा लगाएं, तारीख का अंदाजा लगाएं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेसत मुबारक से पहले, आपके ऐलान नबूवत से पहले, यहूद व नसारा के उलमा का एक पूरा इक़्तिदार उनको हासिल था। यहूद व नसारा को एक मजहबी इक़्तिदार हासिल था। बेशक कैसे रूम बादशाह था, सारा कुछ था, लेकिन उनको जो उनके जो एक पापायत का निज़ाम कायम था, उनका जो पोप का निज़ाम कायम था, वो आज भी रोम के अंदर मौजूद है, इटली के अंदर। उनकी अलग रियासत है। आपको मालूम है, आपने कभी ये इल्म हासिल करने की कोशिश की, कभी मालूमात हासिल करने की कोशिश की? ये आज तो आपके पास ये मोबाइल की सूरत में आपके पास सारा इल्म मौजूद है, लेकिन याद रखना, यहाँ मैं एक नुक्ता बयान करता चलूँ, ये नतीजे की बात है कि चैट जीपीटी से इल्म हासिल न करना, क्योंकि ये आपको गलत हवाला जात देता है। आप तजुर्बा करके देखें, आप कोई चीज लिखें उस पर, वो आप उससे हवाला मांगे, वो आपको किसी हदीस का हवाला दे देगा, किसी रिवायत का हवाला दे देगा। आप किताब देखेंगे तो वो हवाला उस किताब में मौजूद नहीं होगा। इसलिए अल्लाह का वास्ता है, उलमा के पास जाओ, जो साहिबान इल्म है उनके पास जाके दीन हासिल करो। ये सोशल मीडिया पर जो आपको दीन दिया जा रहा है, ये यहूद व नसारा का दीन है। उन्होंने आपको खलत मलत करके आपके पूरे निज़ाम तालीम को और दीन को ऐसा आपके सामने बना के पेश कर दिया है कि आप हर चीज को गलत को सही समझने लगे। आप कभी तजर्बा करके देखें, आज ही तजर्बा करके देखें। इसलिए अल्लाह का वास्ता है, उलमाए हक के पास जाकर दीन हासिल। उस जमाने के अंदर क्या था? पापायत का एक पूरा सिस्टम मौजूद था। लोग गुनाह करते थे, पादरी और उनके उलमा उनके पास जाते थे, अपने उलमा के पास जाते थे। वो लोग गुनाह करने के बाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुदूद को तोड़ने के बाद, वो उनसे माल लेते थे, इज़ाना लेते थे कि भाई इतना माल दो, उस गुनाह के बदले में आप हमें जमा कराओ, हम आपके गुनाह का जिम्मा अपने साथ लेते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से हम उस गुनाह को बचा देंगे। वो लोग उनको माल देते थे और वो अपने गुनाहों से पाक हो जाते थे, अपने आप को समझते थे हम गुनाहों से पाक हो। और वो मशाइख के पास जाते थे और वो मशाइख कहते थे कि बस आप हमारे पास आ गए, लिहाजा आप अल्लाह के पास चले गए, अब आपको मजीद तवज्जो करने की जरूरत नहीं है, बस आप हमारी खिदमत करें, हमें माल दें, हमें असबाब मुहैया करें, हमारी तय्युरात अय्याशी के सामान मुहैया करें, लिहाजा आपको अब अल्लाह ताला के पास जाने की, तवज्जो करने की, जद्दोजहद करने की जरूरत हरगिज़ नहीं है। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तरह करने को यअकुलून अम्वालन नास बिल बातिल व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, इस चीज को जाहिर किया। आप देखें हमारे माशरे में क्या हो रहा है। कुरान मजीद की अन आयात की रोशनी में हमारे माशरे में क्या हो रहा है।
अब हमारे उलमा और मशाइख इस दौर में क्या कर रहे हैं? क्या वो यही काम तो नहीं कर रहे? हमें सोचना चाहिए। आप उलमा के पास जाते हैं, आप कितने ऐसे मकामात हैं, हमारे इल्म में बहुत सारी बातें ऐसे आई, आप उलमा के पास जाते हैं, वो आप जो मर्जी मन चाहा फतवा ले ले उनसे, वो आपको फतवा लिख के दे देते हैं, हराम को हलाल कर देते हैं, हलाल को हराम कर देते हैं। ऐसी बात है कि नहीं? खास तौर पे तलाक के मसाइल में, तलाक के मसाइल में वो हराम को हलाल कर देते हैं और कहते हैं जी तुमने तलाक दी है और 3 तलाकें मजलिस की है या 3 से ज्यादा दी है, लिहाजा ये एक ही खबर होगी और ये तुम्हारी बीवी तुम पर हलाल है। ऐसे होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप उलमा के पास फतवा पूछने जाते हैं और आप उनकी खिदमत करते हैं, उन्होंने फीसें रखी हुई है, आपको वो उसमें फतवा दे देते हैं, हराम को हलाल कर देते हैं, हराम को हलाल है और हलाल को हराम, मुसलमान को काफिर और काफिर को मुसलमान। ये वो चीजें हैं जो हमारे अंदर भी आ गई। अब हमारे मशाइख का क्या आलम? हमारे मशाइख जो असल है, जो हकीकी मशाइख है, जो हकीकी पीर है, उनका क्या काम है? और हमारे यहाँ आजकल क्या हो रहा है? क्या अहलुल्लाह ने, क्या आप ऊपर के मशाइख से ले, अव्वल सदी से, सहाबा किराम के दौर से ले और आज के दौर तक जो सही अहलुल्लाह है, क्या उन्होंने अपने मज़ारात पर मेले लगाए? क्या उन्होंने फहश और गलत किस्म के काम अपने मज़ारात पे या अपने दरबारों में करवाए? क्या उन्होंने शरीयत के खिलाफ अपने घरों में और अपने उन आस्थानों पर शरीयत के खिलाफ अमाल को रिवाज दिया? आप मुझे कोई एक शेख कामिल बताएं जिसने अपनी जिंदगी शरीयत के खिलाफ गुजारी। कोई एक शेख कामिल बताओ मुझे। हजरत गौसे आजम से लेकर के दाता अली हजवेरी से लेकर के आज के मशाइख तक जो सहीउल अकीदा रासिखुल अमल मशाइख है, उन तक आज तक मुझे कोई बताए कि उन्होंने शरीयत के खिलाफ जिंदगी गुजारी। लेकिन ये क्या है? ये मज़ारात पर, उन अल्लाह के वलियों के मज़ारात पर जिन्होंने सारी जिंदगी तबलीग दीन की है, जिन्होंने लोगों को अल्लाह ताला की तरफ दावत दी है, जिन्होंने लोगों को अल्लाह से मिलाया और जोड़ा है, उनके मज़ारात पर आज मेले लगते हैं और उनमें फांसी होती है और उनमें शराब और कबाब के नशे किए जाते हैं और उसमें बदकारियां की जाती है। ये अल्लाह का काम है। फिर हमारे उलमा क्यों नहीं इसके खिलाफ बोलते? हमारे उलमा उन्हीं मज़ारात पे जाके तकरीरें करते हैं, लेकिन वो कभी मिल करके हुकूमत पर इस बात को जोर क्यों नहीं देते कि इन खुराफात को, इन अल्लाह के वलियों के मज़ारात से खत्म किया जाए? क्यों मैं गलत कह रहा हूँ? हमारे मशाइख ने शरीयत के खिलाफ न जिंदगी गुजारी, न उन्होंने कभी इसकी तालीम दी। और क्या होता है? अब यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, उनको उलमा और मशाइख रोकते हैं। हमारे उलमा और मशाइख क्या करते? जो नाम निहाद, मैं हकीकत का वही कह रहा हूँ। पहले मैंने इब्तिदा में ही बात इसलिए की है कि हम आयात कुरानी को और हदीस को सच्चे लोगों पर मुंतबिक कर देते हैं और लोगों को उनके पास जाने से भी रोक देते हैं, और इसकी वजह से ये जो दीन की तालीमात है ये गलत लोगों के हाथों में चली जाती है। अब ये लोग क्या करते हैं? आप गलत लोगों के पास, गैर शरई लोगों के पास, तावीज लिखने वाले लोगों के पास, जादू का तोड़ करने वाले लोगों के पास, जादू का तोड़ जादू से करने वालों के पास चले जाते हो अपनी थोड़ी सी दुनियावी ख्वाहिशात की तकमील के लिए,
अपने थोड़े से आराम हासिल करने के लिए, अपनी जिंदगी में थोड़ा सा सुकून हासिल करने के लिए गलत लोगों के पास चले जाते हो, फिर वो क्या होता है, तुम्हारा माल तुमसे ले लेते हैं और तुम्हें गुमराहियों के रास्ते पर लगा देते हैं। ऐसी बात है कि नहीं? क्यों जाते हो जादू करने वालों के पास? याद रखो, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो कोई शख्स किसी जादूगर के पास गया, जो कोई गलत अमल करने वालों के पास गया, उसका ईमान भी गया और जो जादू करने वाला है उसका ईमान पहले ही चला। अपने ईमान को बर्बाद करके, अपनी अज़वाज को अपने ऊपर हराम करके तुम जिंदगी का थोड़ा सा सुकून हासिल करते हो, वो भी नहीं मिलता। आप याद रखें, जादू से कभी भी इंसान को सुकून नहीं मिलता। ये वो लोग हैं जो व्यापारी बैठे हुए हैं, जगह जगह दुकानें खुली हुई हैं, ये अमलियात करने वाले लोग। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या अमल किया, क्या अमल किया? जब सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये जो मालो दौलत असबाब है इसके बारे में हम क्या करें? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो मना फरमा दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप इस बात की दुआ करें कि या अल्लाह, तू हमें जिक्र करने वाली जुबान अता फरमा और तू हमें शुक्र करने वाला कल्ब अता फरमा। बदअमलों के पास, मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक अमूमी बात करूं कि हम लोग जब इन बदअमल पीरों के पास जाते हैं, जो मेले कराने वाले हैं, जो कंजरियां नचाने वाले हैं, जो मौत पर कुएं लगा के और दूसरी खुराफात करके वहां पे गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, उनको पीर मानते हो? वो मशाइख हैं, वो दीन के दलाल हैं, वो दीन को बेचने वाले हैं, वो जालिम लोग हैं। हम लोग उनके पास चले जाते हैं, अपना दीन बर्बाद कर देते हैं, और फिर क्या होता है, वो यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, वो तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जाने से रोकते हैं। क्यों? शेख कामिल का ये काम है, जो सही पीर है, जो सही शेख कामिल है, उसका ये काम है कि वो आपको अल्लाह की राह पर चलाते चलाते, अल्लाह की ताबे फरमानी कराते कराते, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की पैरवी कराते कराते, उनकी तालीम देते देते तुम्हें अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाता है। शेख कामिल वो होता है जो आपको महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबे फरमान बना के उनकी बारगाह में आपको झुका देता है, उनकी बारगाह में आपको ले जाता है। और शेख कामिल वो है जो आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत से जोड़ देता है। अल्लाह ताला से तोड़ने वाला शेख कामिल होता ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? हम अल्हम्दुलिल्लाह हक बात करते हैं। मैं खुद पीर हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं गलत बात को सपोर्ट करूं, नहीं। आपको क्या करते हैं वो लोग जब आप उनके पास जाते हैं? आप में से कई लोगों ने तजर्बा किया होगा, जब आप लोगों के पास जाते हैं वो क्या करते हैं? आप जी ठीक है जी, आज के बाद आपने नमाज नहीं पढ़नी, बस हम जिम्मेदार हैं। आप आज के बाद आपने रोजा नहीं पढ़ना, बस रोजा नहीं रखना, बस आपका रोजा हो गया, आपकी नमाज हो गई, हमारे जिम्मे। अब क्या होता है, वो फिर बंदा गुमराहियों के रास्ते पर चलते हुए इतना कमजोर हो जाता है, उसका अकीदा, उसका ईमान इतना कमजोर हो जाता है कि वो फिर सायों से भी डरता है? कोई साया हो जाए, किसी चीज का कोई परछावां पड़ जाए या कोई उसको छाया नजर आ जाए तो उससे भी डरता है। लेकिन याद रखो, मोमिन वो है, अल्लाह का बंदा वो है जिससे हर चीज डरती है। अल्लाह का बंदा सिवाय रब के और किसी के आगे सर नहीं झुकाता, और महबूब करीम की बारगाह के अलावा किसी और बारगाह से वो ताल्लुक नहीं रखता, और दुनिया की किसी ताकत से वो डरता भी नहीं। मोमिन बंदा वो है। पीरों का तरीका ये है, शेख कामिल का तरीका ये है, असल मशाइख का तरीका ये है कि वो सारे दुनिया के डर दिलों से निकाल के एक अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ पैदा कर, सारी दुनिया से तोड़ के एक रब से जोड़ दे। मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारे बुजुर्गों का हमने देखा, अब तो वो सिलसिले खत्म हो गए, कि जब हमारे बुजुर्गों उस मुबारक पर सारे इकट्ठे होकर पूछाए आगे आगे होते थे, उस वक्त पीर साहिबान आगे आगे होते थे, मुरीद पीछे पीछे होते थे,
مرید باادب ہوتے تھے, ادب کرنے والے ہوتے تھے مرید, تو سچے مرید ہوتے تھے. آج کل جیلی مرید, آج کل پیر بھی جیلی, مرید بھی جیلی. نہ پیروں کے اندر ادب آداب رہے ہیں, نہ مریدوں کے اندر ادب آداب. وہ جب سب آگے ہمارے آباؤ اجداد, ہمارے بزرگ آگے آگے چلتے تھے, اور پیچھے وہ کیا کرتے تھے, وہ ایک سب نال توڑ رب نال جوڑ, یہ نعرہ لگتا تھا, سب نال توڑ رب نال جوڑ. وہ کیا, سب سے توڑ کر ساری دنیا کی طاقتوں سے تعلق ختم کر کے رب تعالیٰ سے تعلق بنا دیتے ہیں. یہ ہے اصل طریقت, یہ ہے اصل طریقت کاملہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ تک لے جانے والی. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے جڑنے سے روکتے ہیں. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ, وہ لوگ کہ جو سونے اور چاندی کے کنز بناتے ہیں, اندوختے بناتے ہیں. آپ نے اسے کیا کہتے ہیں, اکٹھی کرتے ہیں نا, سونے اور چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں, کنز بناتے ہیں. کنز کا مطلب ہے جوڑ کر رکھنا, ذخیرہ اندوزی کرنا, یا اس کو کیا کہتے ہیں, اب مجھے ذہن میں نہیں آ رہی بات, کیا اسے کہتے ہیں, اکٹھا جوڑ کے مال رکھنا اور اس کو بنانا, اور خزانہ مہیا کرتے ہیں اس چیز کے, سونے اور چاندی کے. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور وہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں کرتے. جس کے لیے خرچ کرتے ہیں, قدرتی شادی ہو گئی, جو زمانے کی خرافات کو شامل کر لیا گئی, میراثی بلا لے گئے, انہوں نے لاکھوں روپے لٹا دیتے گئے. غریب اگر کھانا کھانے آئیں گے, ان کو باہر بٹھایا جائے گا, باہر بیٹھو, حالانکہ وہ حق ان غریبوں اور مسکینوں کا ہے جو امیر کھا جاتے ہیں. ان کو دھکے دیے جاتے ہیں, اور کیا کیا جاتا ہے, اپنے دین کی راہ میں خرچ کرنے کے اس کو کیا کرتے ہیں, اس کو جیبوں میں بھر کے خزانے بناتے ہیں کہ یہ میری اولاد کے کام آتا ہے. یہ انسان اپنے ضروریات زندگی کے علاوہ سب کچھ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. سبحان اللہ کرتے ہیں, ہم, میں بھی کرتے ہیں, ہم نہیں ہیں عمل, میں نے بھی پیسے جمع کیے ہوئے ہیں, آپ نے بھی کی ہوئی ہیں, آپ کے بھی خزانے ہیں, میرے بھی خزانے ہیں, ہم نے بھی آگے کے لیے بچا کر پچھوں بدل کیوں ہوئے گا, اور پچھوں کچھ بھی نہیں ہونا, اسی چلے جانا, پیچھے کچھ بھی نہیں ہونا. اچھا, حضرت ابو ذر غفاری کا یہ مقصد ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر اور کثیر صحابہ, اکثریت جو صحابہ کی ہے وہ اس پر ہے کہ جو لوگ ہونے تو سیدھے کون خوش ہو جاؤ گے, ایسے اتنے وہ ساری بچت ہو رہی ہے. حاجی صاحب, اکثر صحابہ کرام کا یہ ہے کہ ان کا یہ مکتب فکر ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو وہ کنز میں نہیں ہوگا, وہ خزانے میں شامل نہیں ہوگا, بلکہ اس کے لیے وہ حلال ہوگا. ٹھیک ہے, وہ اللہ کی راج نہ دے گی, بس زکوٰۃ سال کے بعد دے دی تھی, پھر اللہ کی راج نہیں دینا, اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کا مطلب یہ ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ آپ جب بھی دین کے لیے آپ کو خرچ کرنا پڑے, اپنا سب کچھ قربان کر دیں. یہ سیدنا صدیق اکبر, سیدنا عمر فاروق, مولا علی, یہ ان لوگوں کی سنت ہے. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی کی سنت ہے, حضرت عثمان غنی, حضرت عبد الرحمن بن عوف, یہ ان صحابہ کرام ہیں جو بڑے مالدار صحابہ, لیکن جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کی طرف سے بلاوا آتا تھا, اور جب کہا جاتا تھا اسلام کے لیے خرچ کرو, تو یہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتے تھے, اپنا سب کچھ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا کرتے تھے. پھر اس سنت پہ بھی عمل کیا جانا چاہیے. دوستوں اور بزرگوں, اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فبشرہم, جو لوگ جو خزانے جمع کرتے ہیں, فبشرہم بعذاب الیم, ان کو بہت دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں, ان کو دردناک عذاب کی خبر دے. پھر کیا ہوگا, عذاب کس طرح ہوگا, اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا. یوم یحمى علیہم, یوم یحمى علیہا
फी नारे जहन्नम, फिर उस दिन उन सोने और चांदी के उन खजानों को लेकर के उनको जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। वो सोने और चांदी के खजाने जो इंसान ने जमा किए होंगे और जो अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं किए होंगे, उनको जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। आप देखें, दुनिया की आग में जब सोने और चांदी को तपाया और थोड़ी सी आग में पिघलाया जाता है तो वो पानी बन जाती है। तो जहन्नम की आग कितनी सख्त होगी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के एक हदीस पाक का मफहूम है कि अगर उसका एक शोला, इस जहन्नम की आग का एक शोला इस दुनिया के अंदर आ जाए तो सारी दुनिया भस्म होके कोयला बन के रह जाए। अब उस आग का तस्वर करें, उस आग में उन सोने और चांदी के खजानों को तपाया जाएगा। फतुक्वा बिहा जिबाहुम व जुनूबहुम व ज़ुहूरुहुम, फिर उनसे उस सोने और चांदी के उन टुकड़ों से उनकी पेशानियों पर, उनकी पहलुओं पर, पीठों पर और उनके पहलुओं पर और उनकी पुश्तों पर, ज़ुहूर उनकी पुश्तों पर उसको दाग दिया जाएगा, उनसे दागा जाएगा। वो जो खजाने सोने और चांदी के जमा किए होंगे, उन टुकड़ों को जहन्नम की आग में गर्म किया जाएगा, फिर उससे पेशानियों को दागा जाएगा, पहलुओं को दागा जाएगा और पुश्तों को दागा जाएगा, यानी उसको तपा के लगाया जाएगा। जब वो टुकड़े ठंडे होंगे, एक हदीस का मफहूम है, जब वो टुकड़े ठंडे होंगे तो फिर उनको तपा के उनको फिर लगाया जाएगा। अब आप ये सवाल आपके ज़हन में पैदा हो सकते हैं नौजवानों के कि हमारे पास तो कागज के खजाने, नोट है, कागज के नोट है, इनको कैसे तपाया जाएगा? इनको तो आग में लगाया जाएगा, आग दिखाई जाएगी तो ये तो जल जाएंगे, इनको कैसे तपाया जाएगा? सोने और चांदी तो आग में जलते तो नहीं है, पिघलते तो है, जलते तो नहीं, लेकिन ये तो पिघल जाएंगे लोग। नोटों का क्या मामला है? नोटों के खजाने, इसका मतलब है ये तो उसमें नहीं आते, लेकिन याद रखो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम हक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम आफाकी है, हमेशा रहने वाला है। अब इन नोटों के पीछे जो गारंटी है, जो हुकूमत इन नोटों, कागज के नोटों के पीछे जो गारंटी देती है, वो किस चीज की है? सोने की है कि नहीं? वरना ये नोट है, ये किसी काम का नहीं है, ये कागज का टुकड़ा है। अगर गवर्नमेंट उसके पीछे अपने उस खजाने के सोने की गारंटी न दे तो ये आपका नोट, ये कागज का एक टुकड़ा है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। आप देखिए अल्लाह का आफाकी कलाम क्या कहता है, यौम युहमा अलैहा फी नारे जहन्नम। अब वो जो गारंटी है पीछे दी हुई, अब उसको लेकर के क्या किया जाएगा? जहन्नम की आग में उसको तापा जाएगा, गर्म किया जाएगा और पेशानी पर और पहलुओं और पुश्तों पे उसको लगाया जाएगा और कहा जाएगा, कहने वाले फरिश्ते, जहन्नम के फरिश्ते कहेंगे, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ये है वो तुम्हारा खजाना जो तुमने अपने आप के लिए, अपनी आसाइशों के लिए, अपनी तय्युशात के लिए, अपनी आसानियों के लिए तुमने जमा किया था, तो इसलिए अब चखो इस खजाने का सजा को, चखो जो तुमने जमा किया। अल्लाह ताला हमें अपने बारगाह में हक बात कहने की और फिर उस पर अमल करने की और फिर उसकी राह में अपना माल खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।